States like Gujarat, Karnataka, Maharashtra, especially, we are the states which we are leading, and we are creating new opportunities for everybody. And whatever we do, I mean, Karnataka is a leader in so many aspects. Gujarat is a leader in so many aspects. So it is for all of the states to come together and keep working harder, take new initiatives, to get more and more investments, get more and more jobs, work together. So that's why the theme for this year's Vibrant Gujarat is from Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat. Yes. So it's no longer, earlier it used to be that as a state we have to work hard so that all the investments within the country come to a particular state. But now it's a synergistic approach of all the states working in coordination, collaboration. Every state is trying to leverage on the strengths that it has. So when anybody in India, when we talk about Bengaluru, it's with a sense of utmost pride that we have been able to create such a beautiful ecosystem for the IT, ITS industry, and so many of the multinational corporations now. So now it is the opportunity for our country to do something that we can get maximum investments that are going to other countries. So that is the real opportunity for all of us, and that is why this attempt and this understanding the vision of Honorable Prime Minister that the Vibrant Gujarat Summit or any particular summit of any particular state should not only be looking at getting investments that are available domestically, but the approach now has to be how does every state create a pathway for international investments. Any investment coming from outside in our country will first come through some state, and then within our country we are getting interconnected more and more than ever before. We travel more for jobs within the country, travel more for tourism. So that is the new approach, that Make in India, Atmanirbhar Bharat, Make in India, make for the world. Vibrant Gujarat Global Summit 2022 10th, 11th, 12th को महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल की ओर से पूरे देश में वाइब्रेंट समिट के लिए हर राज्य में जाके मिनिस्टर, ऑफिसर्स, अन्य देशों में भी हमारा डेलीगेशन हमारी वाइब्रेंट समिट की सब बात रखने के लिए और इन्विटेशन के लिए चाहते हैं। मैं यहाँ बेंगलुरु कर्नाटक में आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज जिस तरह से हमारा रोड शो यहाँ लीला होटल में हुआ और पूरा हॉल फुल था, इसलिए मैं सभी कर्नाटक वासियों और बेंगलुरु वासियों का गुजरात गवर्नमेंट की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे प्रेजेंटेशन अलग अलग सेक्टर के यहाँ हुए हैं। अन्य जिसने इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में गुजरात में किया है उसने भी बताया कि किस तरह से हमारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस सबके लिए गुजरात एक अच्छा प्लेटफॉर्म, देश में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है, हालांकि कर्नाटका भी है, मैं इसका कोई अपोज नहीं कर रहा हूँ। गुजरात और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 2003 से वाइब्रेंट समिट कर रहा है और इसका बेनिफिट पूरे भारत को, यहाँ राज्य के भी कर्नाटका के लोग भी आएंगे। तो मिस्टर नेहरा ने बताया कि ट्रेड शो में अपना वो कुछ भी अपनी बात रख के अपना प्रेजेंटेशन करके B2B मीटिंग वगैरह करके अपने भी स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात प्लेटफॉर्म पूरा पा रहा है। मुझे खुशी है कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधि रखे आने वाली पीढ़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल नेटवर्क, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप और इनोवेशन। हालांकि स्टार्टअप की यहाँ बात हुई तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप में हम नई पॉलिसी
भी बनाने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी नई पॉलिसी इसी साल, वो 5 साल पुरानी थी, खत्म होने वाली है। स्टार्टअप में हम देश में नंबर 1 पे है। हमने नया इनिशिएटिव लिया है, उसको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। टीम को 1 लाख रुपया भी हम उसको दे रहे हैं, रुपीस दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे समय के हिसाब से। लेकिन नॉट ओनली इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, नीचे तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक हमारे यहाँ बोला जाता है, 6 से 12वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स है उसमें कोई इनोवेशन करना है तो इनोवेशन क्लब का भी रचना वहाँ की गई है, वेबसाइट भी वहाँ रखी गई। हम प्लेटफॉर्म देने के लिए उभरते हुए युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, ये हमारी थीम पे वाइब्रेंट गुजरात समिट होने जा रही है। मुझे बहुत उम्मीद और आशा है कि कर्नाटका से भी बहुत सारे प्लेयर्स हमारे गुजरात में आएंगे और हमारे प्लेयर्स भी कर्नाटका में और पूरे देश में जाके आफ्टर ऑल हमारा देश का ग्रोथ कैसे हो, हमारे देश की प्रगति कैसे हो, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, ये थीम पे नरेंद्र भाई जो हमारे विजनरी वड़ा प्रधान, हालांकि मैं तो मानता हूं कि 150-200 बरस के बाद ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है और मिलता है। हम भाग्यशाली है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है और दुनिया की भी एक नज़र हमारे भारत की ओर, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, सभी में एक नई आस और उम्मीद लेके हमारे ओर पहली बार आज़ादी के बाद भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत सबसे बड़ा दुनिया का ग्रोथ करने वाला देश हमारा बनेगा। हमारा गुजरात देखिए, सभी तरह से एक नई पहल भूपेंद्र भाई पटेल हमारे